right. So I welcome you today on this MOOCs uh, online webinar on journey of a physician, right? So during the next couple of hours, we are going to understand couple of things. One is of course the various levels of MBBS as a career. Second is to identify how and why the license examinations are important and why to become a licensed doctor, importance of license examination. Third will be the factors to consider when you are choosing a medical college, okay, whether it is India or abroad, doesn't matter. What is your end goal? Do you want to become a licensed doctor where you want to do a job in a hospital or start your own clinic, और आपको सिर्फ नाम की डिग्री चाहिए? डू यू वांट लाइक अ प्रॉपर डिग्री which you can utilize in your life or career, or you just want a namesake degree? That is the first question which every student who writes the NEET examination and aspires to join a medical school has to ask himself or herself. ठीक है? What is your end goal? Which is very very important. All right, आपका end goal सबको clear होना चाहिए, because medicine is a long journey. और इंडिया के जो नए regulations आए हैं, according to that, until and unless आप licensed physician हो, you are not allowed to practice. Okay, so National Medical Commission के साथ आपका registration होना चाहिए, and you should clear the license national exit examination. I'm sure everybody knows that until now जो बच्चे अब्रॉड जाते थे, सिर्फ उन्हीं बच्चों को एक लाइसेंस एग्जाम देना पड़ता था जिसका नाम था FMGE. ओके, एंड द स्टूडेंट्स हु got admission in a government college in India or private college in India, if they wanted to work as a plain MBBS, there was no examination. Only if they wanted to do PG, they had to appear NEET PG. जो नया रेगुलेशन आया है as per the NMC bill has completely changed the things. Everybody now has to give a centralized exit examination called as the next exam. This next is a common exit examination, okay, which will be introduced by the National Medical Commission. So whether you are a student who is studying abroad, or you are in a government college in India or in a private college in India, every student has to write this common license exit exam called as the next. I hope this is clear to each and every one of how important the exam is. Everybody, जब भी आपका grade 10th खत्म होता है तो सबको पता होता है कि if you want to proceed ahead and join a medical school, NEET UG की कोचिंग करनी पड़ेगी. सबको इसकी सीरियसनेस के बारे में पता है. Despite your junior college and all those things, everybody knows how important is NEET UG coaching. Similarly, when you take admission in a medical college, whether you take admission in India or abroad, everybody should know that from day one of medical school, सब स्टूडेंट्स को नेक्स्ट कोचिंग की तैयारी करनी पड़ेगी. Until and unless you start with the next coaching and आपका विजन क्लियर रहेगा कि आपको लाइसेंस डॉक्टर बनना है, it is going to be difficult. Okay, that is one thing is for sure, because आज की डेट में इंडिया में there are more than 25,000 doctors which are not licensed. ठीक है, आज इंडिया में आप गूगल करोगे तो ऐसे 25,000 डॉक्टर है जिनके पास लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस एग्जाम पास नहीं किया. कोविड के वक्त जब इमरजेंसी था, दे वेंट एंड आस्क्ड द गवर्नमेंट, कैन दे हेल्प? गवर्नमेंट सेड नॉट इंटरेस्टेड. व्हाई? बिकॉज दे डू नॉट हैव लाइसेंस. सो क्वेश्चन एक ही है, क्या आपको भी वो 25,000 के लिस्ट में ज्वाइन होना है,
where you have done a course from a college abroad but you don't have a license? That is the biggest question each and everyone needs to understand. Do you want to become a licensed doctor or not? Get these things very, very clear. And those who are attending the Moksha webinar, one thing is clear: we are not here to, just make you a MBBS physician. We want you to plan right up to PG. वन थिंग एक क्लियर हो गया है कि दो तरह के स्टूडेंट अभी ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं. एक कह रहा है मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, एंड सेकेंड स्टूडेंट इज सेइंग मुझे कार्डियो सर्जन बनना है. ठीक है, नो प्रॉब्लम. कार्डियोलॉजिस्ट बनना है और कार्डियो सर्जन बनना है, इसमें फर्क क्या है? पहली बात तो आपका टारगेट अगर कार्डियोलॉजिस्ट या कार्डियो सर्जन है तो एक चीज क्लियर हो गई कि कहानी प्लेन एमबीबीएस तक नहीं चलेगी. एमबीबीएस तो सिर्फ पहला पार्ट होगा. उसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है. जिसको कार्डियोलॉजिस्ट बनना है उसको एमडी करना पड़ेगा, जिसको कार्डियो सर्जरी करनी है उसको एमएस करना पड़ेगा. थर्ड लेयर आता है, दैट इज सुपर स्पेशलाइजेशन. जो कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता है वो एमबीबीएस करता है, एमडी मेडिसिन, उसके बाद डीएम इन कार्डियोलॉजी. और जो कार्डियो सर्जन बनना चाहता है, कार्डियोथोरेसिक सर्जन या कार्डियोवैस्कुलर सर्जन, वो एमबीबीएस के बाद, एमएस करने के बाद एमसीएच के कोर्स करता है. तो एक चीज तो क्लियर है कि अगर सक्सेसफुल करियर बनाना है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, सो प्लानिंग हैज टू बी राइट अप टू पीजी. तो यूजी, पीजी एंड सुपर पीजी, ऐसे 3 अलग अलग लेवल में ये करियर है और डे 1 से आपको इसका प्लानिंग करना है. ओके, दिस हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर. So keep this in mind very very clearly. All right, Anjali, regarding based on your marks which medical college you will get, वो हम डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, वो आपके बजट के हिसाब से आपको अब्रॉड में कहाँ मिल सकता है वो सब हो जाएगा. पॉइंट वर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं, पहले फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आप समझिए, उसके बाद हम स्पेसिफिक बात करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभिषेक कह रहे हैं सर मुझे ऑन्कोलॉजी, दैट इज कैंसर एंड एड्स के रिसर्च के बारे में आगे जाके करना है काम. तो ऑन्कोलॉजी एक मेडिकल ऑन्कोलॉजी होता है, एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजी होता है. तो राइट नाउ बहुत डिफिकल्ट होगा आपको प्री डिसाइड करने के लिए कि मुझे मेडिकल ऑन्कोलॉजी में जाना है कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजी. बट एक चीज आपकी क्लियर है अभिषेक, कि आपको यह पता चल गया कि 3 लेवल तक ये बातें चलेगी. पहला है एमबीबीएस, उसके बाद एमडीएमएस, उसके बाद डीएम और एमसीएच. तो जब भी आप कुछ भी प्लानिंग करते हो तो वहां तक सोचो, क्योंकि अगर आप वहां तक की क्लैरिटी नहीं लोगे तो प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत सारे मनी आपके पेरेंट्स का वेस्ट हो जाएगा. तो अगर आपने प्लानिंग सही से नहीं किया तो मनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो प्लानिंग अच्छे से करनी है. दूसरा, आपके लाइफ के बहुत सारे इयर्स भी आप वेस्ट करोगे अगर अच्छे से प्लानिंग नहीं किया तो. एंड थर्ड पॉइंट, if any kind of fraud or something is happening, आप उसमें फंस सकते हो, तो उससे भी आपको बचना है. ठीक है, सो लेट अस क्विकली अंडरस्टैंड ये जो जर्नी है मेडिसिन का, ये किस तरह से डिवाइडेड है. हमें अंडर ग्रेजुएशन कहां से करना है, पीजी कहां से करना है, उसकी हम क्लैरिटी अच्छे से ला सके. लुबांशी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो. ठीक है, so first of all this has to be cleared. एमबीबीएस जो होता है, ठीक है, अंडर ग्रेजुएशन डिग्री, जो स्मार्ट स्टूडेंट्स है उनको पता है वो कहां से किया जाता है. मैक्सिमम स्टूडेंट्स विल ट्राई फॉर डूइंग एमबीबीएस फ्रॉम इंडिया ओनली, एंड दैट टू ओनली गवर्नमेंट कॉलेज. ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसकी क्लैरिटी होती है. ठीक है, इफ नॉट इंडिया इन गवर्नमेंट कॉलेज, देन दे विल थिंक अबाउट मे बी रशिया, वो तो अभी ऑलमोस्ट बंद हो चुका है, यूक्रेन या चाइना. ठीक है, फॉर 2020 रशिया ऑलमोस्ट खत्म होने आया. ठीक है,
नाउ द पॉइंट इज, आप कहोगे प्राइवेट में क्या प्रॉब्लम है इंडिया में, तो प्रॉब्लम यह है कि प्राइवेट में 50 लाख से 1 करोड़ रुपीस फीस देनी पड़ती है, और अगर उसके बाद अगर नेक्स्ट एग्जाम पास नहीं हुए तो ये सारे पैसे डूब जाएंगे। क्लियर है? राहिल मैसेज कर रहे हैं कि सर एमबीबीएस इन यूएस या कनाडा क्यों नहीं? तो आप एक बात समझ लो, एमबीबीएस इन यूएस और कनाडा के लिए बहुत ज्यादा बजट लगता है, मिनिमम 4 करोड़ रुपीस बजट है। ऑन टॉप ऑफ इट नंबर ऑफ इयर्स 8 साल है। पहले 4 साल का बीएस करना पड़ता है, विच इज इक्विवेलेंट टू बीएससी इन इंडिया। उसके बाद एक एमकैट एग्जाम देनी पड़ती है, ठीक है, एंड आफ्टर एमकैट एमडी कोर्स करना पड़ता है। तो ये टोटल 8 इयर्स का प्रोग्राम हो जाता है। जो बच्चों का बजट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का होता है वो जनरली क्या करते हैं, वो करेबियन मेडिकल कॉलेज से पढ़ते हैं। तो करेबियन मेडिकल कॉलेज जो जेन्यून है, जो कैम एचपी करके एक एक्रेडिटेशन बॉडी है वहां पे अप्रूव्ड होती है, वो मेडिकल कॉलेजेस का जनरली बजट 1 से 2 करोड़ का होता है, ठीक है। बट देर आर लॉट ऑफ नॉट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज विच आर नॉट इन द लिस्ट, काइंड ऑफ ब्लैक लिस्टेड। तो वैसे भी बहुत रहता है, तो आपको बहुत संभाल के रहना है। देर माइट बी यूनिवर्सिटी जो आपको 30 लाख 40 लाख 50 लाख जितना आप पैसा बोलोगे वो करवा देंगे, बट genuine universities in Caribbean usually have budget of 1 to 2 करोड़ रुपीस, ठीक है। तो फिर उस तरह से चीजों को प्लान करना। तो एक चीज तो हमें क्लियर है कि अंडर ग्रेजुएशन करना है फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज, मिनिमम 80 to 100 ईयर ओल्ड होनी चाहिए, जिसके पास डॉक्टर्स प्रोड्यूस करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्लियर है? अब पीजी की बात कर लेते हैं। पीजी कहां से करना है, बिकॉज यूजी एमबीबीएस तो समझ गया, पीजी और सुपर पीजी ये कहां से करना चाहिए? तो जनरली जो इंडियन स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं वो पोस्ट ग्रेजुएशन इंडिया से अवॉइड करते हैं। इसका रीजन क्या है? 5 रीजन है। पहला रीजन, सीट्स इंडिया में बहुत कम है। अगर 100 बच्चों को एमबीबीएस में एडमिशन मिलता है, 10 बच्चों को एमडीएमएस में, एंड ओनली 1 स्टूडेंट बिकम्स अ कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डियोथोरेसिक सर्जन। ये क्यों होता है? बिकॉज मोर देन 40% सीट्स तो आपकी कोटा में चली जाती है। तो इससे प्रॉब्लम क्या है? इससे प्रॉब्लम ये है कि आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स जिसको गवर्नमेंट में एडमिशन मिलता है, 9 के पेरेंट्स को पीजी के लिए 1 करोड़ रुपए की तैयारी करनी पड़ेगी। तो अभी से अगर आपको ये सोचना पड़ेगा कि इंडिया में पीजी करना है तो 1 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट रहेगी। बहुत एक्सपेंसिव है इंडिया में। ऑन टॉप ऑफ इट जितना मेहनत करवाते हैं उतना स्टाइपेंड भी नहीं मिलता पीजी के दौरान, बहुत कम स्टाइपेंड। आप देख रहे हो कितना प्रोटेस्ट हो रहा है, लोगों को सैलरीज वगैरह नहीं मिल रही है अभी। तो ये प्रॉब्लम है इंडिया में, ठीक है। पांचवा प्रॉब्लम क्या है? बहुत सारे बच्चे जब अंडर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं तो नीट यूजी अपीयर करते हैं, बराबर है। तो यहां पर कुछ बच्चों का ड्रॉप ईयर लगता है। पीजी के लिए पहले नीट पीजी था, अभी ये लाइसेंस एग्जाम आ गया, तो यहां पर भी बच्चों को ड्रॉप ईयर लगता है। तो कभी भी एग्जाम्स होती है तो ड्रॉप ईयर लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये एक एग्जाम कम थी, 2 एग्जाम कम थी क्या? कॉलेज की एग्जाम तो होती ही है। तो अगर सुपर पीजी चाहिए तो 2 साल पहले गवर्नमेंट ने एक और एग्जाम अनाउंस कर दी, नीट सुपर स्पेशलाइजेशन। तो नीट के ऊपर नीट, नीट के ऊपर नीट, तो 3 नीट हो गई अब, ठीक है। तो इसका प्रॉब्लम क्या है? इसका प्रॉब्लम यह है कि जब आप गवर्नमेंट कॉलेज से कोशिश करते रहो तो ड्रॉप ईयर लगता है। ऑन टॉप ऑफ इट अगर प्राइवेट में एडमिशन ले लिया तो पैसे लगते हैं। तो एवरेज एज जिसमें अगर बच्चा एमबीबीएस भी इंडिया से करता है, पीजी भी इंडिया से करता है, सब कुछ इंडिया से करता है, तो सेटल होने का एवरेज एज अराउंड 32 ईयर्स होता है। एंड a minimum 1 crore loan is standing on his or her head. That is the problem. So now you will tell me, sir, पीजी के लिए फिर क्या करें? तो जितने भी स्मार्ट बच्चे हैं उनको पता है यूजी तो गवर्नमेंट कॉलेज इंडिया से ही करना है, मगर पीजी के लिए मैक्सिमम बच्चे चूज करते हैं वन एंड ओनली कंट्री, वो है यूएसए। अब आप बोलोगे यूएस क्यों?
तो उसके भी 5 कारण है। पहला कारण, यूएस में फीस नहीं होता, पीजी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जब आप पीजी करते हो आपको सैलरी मिलती है, इनफैक्ट आपको सैलरी देते हैं मंथली 3 से 4 लाख रुपीस। एक तो पीजी का फीस नहीं है, ऊपर से सैलरी मिलती है। तीसरा, जितना इंडिया में कंपटीशन है 10 में से एक बच्चे को मिलता है, यूएस में 2:1 का रेशियो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का। चौथा, किसी भी प्रकार का कोटा सिस्टम नहीं होता, ठीक है, जैसे इंडिया में अलग अलग टाइप की कोटा सिस्टम है। और पांचवा, इंडिया में जैसे कि आप देख रहे हो, यहां पर नीट दिया, यहां पर नीट दिया, एक और नीट देना है, बट यूएस के प्रोसेस में इंडिया के बच्चे फर्स्ट ईयर से एक एग्जाम की तैयारी करते हैं अलॉन्ग विथ नेक्स्ट, वो है यूएसएमएलई, यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल एग्जाम। नाउ ये एग्जाम जब आप अपीयर करोगे, इसके सीरीज ऑफ एग्जाम रहते हैं, ये सीरीज जब आप खत्म करते हो तो इसी के बेसिस पे आपको पीजी का भी एडमिशन मिलता है और सुपर पीजी का। तो अलग से कोई आपको एग्जाम सुपर पीजी के लिए देनी नहीं पड़ती। और एवरेज एज जिसपे लोग सेटल होते हैं अमेरिका में, वो 27 इयर्स होता है एंड बैंक बैलेंस पॉजिटिव 1 करोड़ होता है। सो दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन a smart student and a student who just listens to the herd. स्मार्ट स्टूडेंट क्या करता है, अंडर ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज से, पोस्ट ग्रेजुएशन इन यूएस, सुपर पीजी इन यूएस। परफेक्ट। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि क्या हम एमबीबीएस इंडिया से करें तो अमेरिका में पीजी कर सकते हैं क्या? एब्सोल्युटली यस, कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपको जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो उसका रिसर्च पड़ेगा। जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो क्या वो अमेरिका में अप्रूव्ड है, जरूरी है। ये समझ लेते हैं कि चाहे आपको इंडिया में एडमिशन लेना है या अब्रॉड जाना है, हाउ डू यू चूज अ मेडिकल कॉलेज सो दैट आपको अमेरिका में आगे जाके अपॉर्चुनिटी मिले। तो हाउ टू चूज अ मेडिकल कॉलेज, ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। कॉलेज रिकॉग्निशन फॉर यूएसएमएलई एलिजिबिलिटी। नॉट एवरी मेडिकल कॉलेज इन इंडिया इज अप्रूव्ड इन अमेरिका, ओके। लुबांशी, यूके में किसी को मिलता नहीं है, ठीक है, रेसिज्म बहुत होता है, थोड़ा गूगल कर लेना। और यूके में फ्री नहीं मिलता, और यूके में एडमिशन नहीं मिलता है, एडमिशन मिलने के बाद रेसिज्म होता है, बच्चों को कोई रोल नहीं मिलता, बैक ऑफिस के जॉब्स मिलते हैं। दैट इज हाउ इट वर्क्स, ओके। सो डोंट इवन थिंक अबाउट यूके। We only recommend countries where you can make a career out of it. So the point is that whichever college you take an admission in, whether your medical college is approved or not, please check it. In India there are 517 medical colleges. If you take admission in 357 of these colleges which are in the world directory in ECFMG, no problem, you don't have to worry. But if by mistake you take admission in these colleges which are either not in world directory or not approved by ECFMG, problem is out of 10 students 9 students के parents को 1 करोड़ की तैयारी करनी पड़े, because if you don't get admission for PG you will not in America, which means you have to be ready with 1 crore rupee in a private medical college. That is the biggest problem. So you need to understand what are the challenges in India. Challenges in India are manifold, and you need to make sure you are doing the right research. Okay, what we will do at Moksha is just give you those right research tools so that you can take a informed decision. Whether you join a medical school in India, abroad, that doesn't matter. Okay. So the question is how to choose university for free medical PG in USA. Step 1, log into wdoms.org, World Directory of Medical School.org. Find your medical school.
check whether that medical college is approved or not, and only then join the medical school. Okay, I will show you a live demo. Okay, let's see for the world directory. Okay, anyone in the chat column want to name the city? कोई भी आप एक सिटी बताइए जिसका हमें चेक करना है। तो इंडिया में जहां पर भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जस्ट नेम अ सिटी और हम चेक करेंगे कि वहां की जो कॉलेजेस है वो अप्रूव्ड है या नहीं है। ओके गाइस, क्विकली टाइप wherever you are and whichever city you are trying for, so that you will understand किस तरह से चीजों को चेक करना है। Okay, Anjali is saying Mumbai. Okay, let us see for Bombay. So supposing Anjali is planning to take admission in Mumbai. Okay. So in Mumbai there are how many medical colleges? 9 medical colleges. All right. Private and government included. So let us see for one college, Grant Government Medical College. One criteria is fulfilled that the college is there in the world directory, no problem. What was the second criteria? सेकेंड क्राइटेरिया वॉज टू चेक स्पॉन्सर नोट्स। वो कहां से पता चलता है? वो यहां पर पता चलता है, स्पॉन्सर नोट्स। इस बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। सो इफ आई प्रेस दिस बटन, हमें पता चलता है कि ये मेडिकल कॉलेज कनाडा में, यूएस में अप्रूव्ड है। क्या हमें पीजी का अपॉर्चुनिटी मिलेगा? यस और नो। As you can see, this college is approved in Canada, this college is approved in USA, no problem whatsoever. And इसका सिंपल रीजन क्या था? रीजन ये है कि ये गवर्नमेंट है और मिनिमम 100-150 ईयर ओल्ड यूनिवर्सिटी है। But let's say Anjali does not attend the Moksha webinar, does not do the research and takes admission in this college. Let's say Anjali takes admission in this college. Now this particular college is government, 2015, and Anjali says, okay, I want to ultimately settle in America and do a free PG there. Can Anjali go to USA after studying from this college? Right now, no, because this college is not approved in Canada or USA. So this is how you do your own research. This is how you find out that जिस मेडिकल कॉलेज में हम एडमिशन ले रहे हैं क्या वो अप्रूव्ड है। फॉर एग्जाम्पल एम्स दिल्ली, वेरी मच अप्रूव्ड, नो प्रॉब्लम, बट एम्स नागपुर नॉट अप्रूव्ड, एम्स भोपाल अप्रूव्ड, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज हाउ यू चेक। इन यूक्रेन उमसा पोल्टावा अप्रूव्ड, नो प्रॉब्लम, रशिया पिरोगोव अप्रूव्ड, नो प्रॉब्लम, Vitebsk Belarus is approved, no problem. However, if you don't do research and you listen to YouTube channels, okay, and take decision, what happens? Suppose in किसी ने YouTube का वीडियो देखा और एडमिशन ले लिया इस कॉलेज में, तो प्रॉब्लम क्या है? क्या वो फ्री में पीजी कर पाएंगे यूएस में? नहीं कर पाएंगे। बट YouTube वीडियो में तो बहुत अच्छे से बताया गया था। तो ये आपको चेक करना है, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड अबाउट दिस कॉलेज? या फेसबुक पे ऐड देखा है या इंस्टा पे ऐड देखा है? एग्जैक्टली करेक्ट। या फिर आपको बोलेंगे जॉर्जिया चले जाइए, ये भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, ये भी अप्रूव्ड नहीं है इन यूएसए। सो वी नीड टू डू द राइट रिसर्च। द कॉलेज इन विच वी आर अप्लाइंग, इज इट अप्रूव्ड इन अमेरिका और नॉट? Okay, now this college is very popular in South India. They have named the college American, so people feel it is approved in America. No, it is not approved. So you need to find out properly. Okay, this college is very popular in Uttar Pradesh and Bihar. Again, the name is international, but is the college approved in US and Canada? Not approved. So do your research well.
Lviv Medical Institute, Ukraine, approved, not approved. Okay, Lviv is a private institution in Ukraine. In Ukraine, in fact, there are two Lviv. One is a government proper 100-year-old university, and second is a private. And that is why we are saying do your own research, check your world directory, and find out your destination college, and then take the decision. All right. So you need to find out what are the better colleges in your country जहां से आपका free PG हो सकता है. So for example, इंडिया में मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो आज यूएस में पढ़ रहे हैं वो आइदर एम्स दिल्ली से उन्होंने किया है कोर्स, या मौलाना आजाद, या ओस्मानिया, वीएमएमसी, बीजे मेडिकल कॉलेज पुणे और अहमदाबाद, मेडिकल कॉलेज बड़ौदा, जीएमसी मुंबई, एएफएमसी पुणे, सीएमसी वेल्लोर. सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो आज यूएस में पीजी फ्री में करते हैं वो इंडिया की इस कॉलेजेस में पढ़ रहे थे सालों से. सो अगर इंडिया से आप देख रहे हो, रेस्ट ऑफ इंडिया देख लो कितने बच्चे हैं और बाकी आप देख लो. So that's why it is preferred that you take admission in these colleges agar your ultimate aim is to do a free PG and settle in America. Okay. Similarly, if somebody tries for Russia, the number one is Pirogov, second is Kazan state, third is Crimea, and fourth is Sechenov. All right. Somebody was asking about Ukraine. Umsa Poltava, number one. Lviv, that is government wala Lviv. Number two, Vinnytsia, number three, and BSMU, Bukovinian State Medical, number 4. No problem. You take admission in any of these, no problem whatsoever. All right. Similarly, जिनका budget high रहता है, okay, they can think about Caribbean institutions, recognized genuine institutions, more than 2.5 crore budget, 2.25 crore budget, 1.75 crore budget, 1 crore budget. Okay, then you can consider Caribbean island. But anybody offering you Caribbean island on 30, 40, 50 lakhs, just stay away. ठीक है, बहुत scams हो रहे हैं, so be very very careful about that. So I hope this is making sense and you have a complete picture that whichever country you go, decision आपका रहेगा, but research you have to do. You need to find out whether the medical college is government or private, whether it is 100-year-old or not, whether it has experience or not, whether it is approved by the accreditation body. Very important. Of course, joining license exam coaching, yes or no, is your choice. At Moksh, every student, whether he joins a medical college in India or abroad, prepares for the license exam from first year. But it is ultimately your choice, because if you are meeting any roadside agent, usually they will say license exam important nahi hai, because for them आप लाइसेंस डॉक्टर बनो ना बनो उनको क्या फर्क पड़ता है. their job was to earn commission by sending you in a bottom most private medical college and make money. So they will say license exam not important. So it's like अंगूर खट्टे होते हैं, so that's what it is. But in reality, जो smart students है, they are very clear that first year say you need to prepare for either USMLE or the next examination, and that's how thousands of students are preparing on the MOOCs platform. Okay, and there is no secret to success in MBBS. It is persistent, consistent effort right from first year. That is the only secret. तो मोक्स के स्टूडेंट्स को पता है कि फर्स्ट ईयर से अगर तैयारी करेंगे तो थर्ड ईयर में यूएसएमएलई स्टेप 1 का एग्जाम दे देंगे. और पेशेंट सेंटर्ड लर्निंग अगर हमने करवाया तभी हमारा सक्सेस रहने वाला है. दिस थिंग एवरी स्टूडेंट इज वेरी वेरी क्लियर. क्योंकि अभी जो नेक्स्ट एग्जाम आया है उसमें आप रट्टा मारोगे तो कोई फायदा नहीं है. रोट लर्निंग इज ओवर. Conceptual knowledge is required. So if you learn patient centered orientation, क्योंकि USMLE step 1 का पोर्शन क्या है, these subjects but on a clinical way. बेनिफिट क्या है,
जो स्टूडेंट एनैट क्लिनिकल वे में समझता है, फॉर हिम सर्जिकल फील्ड बिकम इजियर। फिजियो, पैथो, फार्मा अगर आपने अच्छे से समझ लिया क्लिनिकल वे से, तो आपके मेडिसिन सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल डू वेल इन योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन। एंड जैसे ही आपका इंटर्नशिप स्टार्ट हुआ, आपने बाकी की यूएसएमएलई एग्जाम दे दी, एंड देन यू कैन प्लान फॉर योर पीजी इन अमेरिका। By following the first year theory of moksha, students are having multiple advantages. First of all, pass rate बहुत ज्यादा अच्छे आ रहे हैं. Secondly, number of years after graduation, on an average, student waste 3 years after graduation to prepare for step 1, next, and CK, CS examination. Instead of that, वो आपकी पैरेलल होती है, तो आपके लाइफ के 3 साल आप बचा लोगे. तो इट इज अपॉन यू कि अभी टाइम पास करना है या अभी मेहनत करनी है और बाद में सक्सेस पाना है, या अभी टाइम पास करना है और बाद में एफर्ट्स लगानी है. अदरवाइज रिस्क है कि जो 25,000 बच्चे लाइसेंस बिना के बैठे हुए हैं, उनके साथ ही बैठना पड़ेगा आपको. तो वो डिसीजन मेकिंग आपको करना है. मेडिसिन इज अ सीरियस करियर एंड देयर इज नो डेफिनेट, आपको मैं बोल सकता हूँ कोई इश्यू नहीं है ऐसा. एकदम सिंपल सक्सेस फॉर्मूला है. सारे बच्चे क्या करते हैं फर्स्ट ईयर से, चाहे वो इंडिया में पढ़े, अब्रॉड में पढ़े, 8 डिफरेंट कंट्रीज में आज की डेट में मोक्ष के बच्चे पढ़ रहे हैं. फ्रॉम फर्स्ट ईयर व्हेन दे जॉइन अ मेडिकल स्कूल, they are also learning concepts on the मोक्ष एकेडमी प्लेटफॉर्म. सो मोक्ष एकेडमी प्लेटफॉर्म में उनके लाइव लेक्चर्स, लाइव रिव्यू होते हैं, उनका स्टडी शेड्यूल बनता है, उनको कॉन्सेप्चुअल रिकॉर्डिंग वीडियोस मिलते हैं, क्वेश्चन बैंक होता है. सो एवरीथिंग इज देयर ऑन दिस वन सिंगल एंटायर. हमारे बच्चे तो यही बोलते हैं कि सर ये पैरेलल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी जैसा ही है हमारे लिए. सो दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द मोक्ष प्रोग्राम. You have the opportunity to kind of attend sessions from the top faculties. क्लिक करो, क्लिक ऑफ अ बटन, आप लेक्चर अटेंड कर पाओगे. For example, Dr. Saxena, he teaches from the Netherlands. Dr. Sharma, he's a graduate from the prestigious John Hopkins University in USA. Today you will be meeting Dr. Joshi at 7:30 India time. तो विवेक सर अमेरिका से टीच करते हैं सारे बच्चों को. So you can see the kind of faculties which are there. Then you have amazing level of video assignments to be done. More importantly, जो सक्सेस का बिगेस्ट फॉर्मूला होता है वो होता है टेस्ट एंड असेसमेंट. तो मोक्ष के स्टूडेंट्स पेशेंट केस बेस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं वेरी रेगुलरली ऑन द मोक्ष प्लेटफॉर्म. The platform is designed keeping in mind the requirement of students. So you have questions by subject, by system, and it is the clear mandate of students to ensure that you are practicing questions as per the new competency based curriculum. अब तक आप जो कॉलेज में पढ़ रहे थे or you were studying in your school was only subjects, but now in the medical school or medical college, in the new competency based curriculum, you need to learn concepts organ system wise. Why? Because अगर patient आपके पास आता है तो he will come with the issue organ system wise. For example, if a patient comes with an issue of kidney stone for example, तो उसका रीनल सिस्टम रिलेटेड क्वेश्चन है. ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. तो अगर आपको एक रीनल सिस्टम का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको किडनी के एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए.
ब्लड और यूरिन के बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। अगर इन्फेक्शन हुआ है तो वो किसी माइक्रोबायोलॉजी, किसी माइक्रोब के वजह से हुआ है, आपकी इम्यून सिस्टम क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो बॉडी में किस प्रकार की डिसीज, मतलब पैथोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। एंड उसको ट्रीट करने के लिए कौन सा ड्रग लगेगा, तो फार्माकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। इन शॉर्ट, एक क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मल्टीपल सब्जेक्ट का नॉलेज लगता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द पेशेंट सेंटर्ड लर्निंग। तो जो पहले बच्चे एनएट का बुक्स अलग से रट्टा मारते थे, बायोकेम अलग से रट्टा मारते थे, ये सब अभी खत्म हो गया। नाउ द स्टूडेंट्स हु आर सीरियस, हु वांट टू बिकम अ लाइसेंस डॉक्टर, वो ही सक्सेस होने वाले हैं। बाकी सबके लिए बहुत डिफिकल्ट रहने वाला है मेडिसिन एज अ करियर। तो ओनली एंड ओनली इफ यू वांट टू बिकम अ जेन्युइन डॉक्टर who wants to serve humanity, who wants to become a right physician with proper ethics, then this is a career for you. Of course, at Moksha, we invite lot of guest faculties who will let you know your career as anesthesiologist, family medicine, neurologist, orthopedic surgeon, pediatrics, urologist. There are so many career opportunities available right after MBBS. तो उसकी प्रॉपर मेंटोरिंग ट्रेनिंग हम आपको स्पेशलिस्ट से मिलवाते हैं, वो आपको डिस्कस करेंगे प्रोज एंड कॉन्स। सो दैट इज हाउ द प्रोसेस वर्क। सो दिस इज अ लॉन्ग जर्नी एंड यू रिक्वायर योर मेंटोरशिप right up to PG. All right. So this clarity each one of you need to have. All right. Perfect. So now, of course, I will take up any questions which you guys have. Okay. Please type in all the questions which you guys have. Medical school admission, this is just the first step in the entire journey. Okay? You need to think about your college exams. How will you clear that? अगर लाइसेंस एग्जाम नेक्स्ट क्लियर नहीं किया तो डिग्री कैसे मिलेगा, और अगर यूएसएमएल ही नहीं किया तो पीजी कैसे मिलेगा। ऑलराइट, यू नीड टू थिंक अबाउट दैट एज वेल. Basically, your entire journey is not 5 years but minimum 8 to 10 years. Okay, make sure you are clear about that. A minimum 8 to 10 year journey is what you guys have. So anybody else has any questions, feel free to ask. Gaurang, this is a medicine as a career, take it seriously. It is not your NEET UG where you can just rely on YouTube and just think about some magic happening. So definitely you should try that also. You rely on YouTube and come back to us few years down the line, not a problem. But people don't take chances with medicine as a career because it's not easy to pass college exam. It's not easy to pass the license exam. But yes, if you feel you can manage from YouTube video, absolutely. We told you at the start, choice is yours. We are here to give you the direction. Ultimate decision will always be yours. Okay. So Aviral is asking, sir, what about PG in Australia or Europe? So let's discuss that as well. That's a very good question, Aviral. So let us quickly discuss that option. Okay. Any question you have, you can stop me then and then, but ensure you have a clarity. Okay. Sir, what about PG in Australia or PG in European countries? So first of all, please, आपको जो इतना डिस्कशन किया है उसके बाद हम ये नेक्स्ट लेवल की बात कर रहे हैं, तो आप चीजों को समझिए. ठीक है. मेडिसिन एक ऐसा फील्ड है ना जहां पर आपने डिग्री लिया उसका मतलब लाइसेंस का गारंटी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, आई ज्वाइन एन MBA कोर्स, आई ज्वाइन अ BCom कोर्स, आई ज्वाइन एन इंजीनियरिंग कोर्स. मैंने वो कोर्स कर लिया, उसके बाद मुझे कोई लाइसेंस वगैरह लगता नहीं है. बट मेडिसिन एक ऐसा फील्ड है जहां पर मुझे कंपल्सरी, once I complete a degree, I need to clear a license exam, and after that I will get a license. Clear hai? Am I making sense? Similarly, हर्ष, पीजी का मतलब ये नहीं है कि मैं सेटल हो सकता हूं. फॉर एग्जाम्पल, किसी कंट्री से मैं पीजी करता हूं
that does not mean I can settle in that country. At the same time, if I do PG in one country, there is a possibility कि मैं और दूसरी अलग अलग कंट्री में सेटल हो सकता हूं. ठीक है, तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी अविरल, इज दैट पीजी करने के लिए कौन से ऑप्शंस रहते हैं और सेटल के कौन से ऑप्शन रहते हैं आफ्टर डूइंग अ पीजी. तो आप एमबीबीएस चाहे कोई भी कंट्री से करो, पीजी के हमारे ऑप्शंस है इंडिया, यूएसए एंड जर्मनी. मगर अगर आपने इंडिया से पीजी किया है या यूएस से पीजी किया है और आपको सेटल होना है, तो आप सेटल ऑस्ट्रेलिया में हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप सेटल कनाडा में हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप सेटल मिडल ईस्ट में हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. क्या आप पीजी कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया में? नो, वहां पर सीटी नहीं है. कनाडा में नो, वहां पर कोटा सिस्टम है. मिडल ईस्ट में हॉस्पिटल्स बहुत कम है. तो आपको समझना पड़ेगा पीजी कहां से करना है, सेटल कहां से करना है. एम आई मेकिंग सेंस? सो लेट अस डिस्कस नाउ कहां से पीजी करना है, कहां से सेटल होना है. इररेस्पेक्टिव जहां से पीजी करना है, जहां सेटल होना है, अल्टीमेटली लाइसेंस एग्जाम देना पड़ता है. ठीक है. सो हर्ष, अगर आपको यूएस में सेटल या पीजी करना है तो यूएसएमएल ही देना पड़ता है. यूके में प्लैब है, इंडिया में नेक्स्ट एग्जाम है, कनाडा में मैकी है, ऑस्ट्रेलिया में एएमसी है, न्यूजीलैंड में एनजेडआरईएस है और जर्मनी में एफएसपी केएसपी एग्जाम है. अब आप बोलोगे एग्जाम्स कितनी डिफिकल्ट है, तो डिफिकल्टी लेवल देख लो. यूएस के एग्जाम डिफिकल्ट है, इन इंडिया की नेक्स्ट एग्जाम भी डिफिकल्ट है, यूके की कंपैरेटिवली इजी है, कनाडा की मीडियम है, जर्मनी की इजी है. ठीक है. बट प्रॉब्लम क्या है वो भी आप समझ लो. यूएस में कोई कोटा सिस्टम है? नहीं है. यूके में तो डेफिनेटली है. ब्रिटिशर लोगों ने तो अपने को कोटा सिस्टम समझाया था, तो इंडियंस को, कनाडा को, ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को, इन सबको कोटा सिखाया ब्रिटिशर लोगों ने. जर्मनी में कोटा सिस्टम नहीं है. ठीक है. अगर हम पीजी की सीट्स बात करें तो यूएस में 34,000 है, यूके में 15,000 है, इंडिया में 30,000 है, कनाडा में 2,000 है, ऑस्ट्रेलिया में 5,000 है, न्यूजीलैंड में 500 है, जर्मनी में 5,000 है. मगर अगर मेडिकल प्रोफेशनल्स के वीजा की बात करें तो यूएस में इश्यूज लो है, यूके में बहुत हाई है, इंडिया में तो आपको लगेगा ही नहीं, कनाडा में लो है, ये सारी कंट्री में लो है. ठीक है. तो आपको ये चीजें आप बिकॉज अभी ग्रेड 12 किया है तो आपको दिया लाइफ में होती नहीं है, बट आपको मैं अभी से बता रहा हूँ कि ये रियलिटी समझो. इतना इजी नहीं है जितना आपको दो उठा लिया. बच्चे पूछते सर इटाली का क्या, सर फ्रांस का क्या, ऐसे रैंडम नेम नहीं करते. मेडिसिन एक करियर, सीरियस करियर है. यूएस में सेटल हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर पीजी यूएस से चाहिए. यूके में तो आप सेटल भी नहीं हो सकते हो, पीजी भी नहीं मिलता, कोटा सिस्टम है, रेसिज्म होता है, बहुत प्रॉब्लम्स है. इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बहुत टाइम लगता है सेटल होने के लिए. अगर आपने इंडिया से पीजी किया या यूएस से पीजी किया तो आप कनाडा में सेटल हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. न्यूजीलैंड में सेटल हो सकते हो. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. और गल्फ कंट्रीज में. और जर्मनी में क्या प्रॉब्लम है कि जर्मनी में जो पीजी होता है वो जर्मन लैंग्वेज में होता है. तो पहले तो ये वन वे रूट है. आप जर्मनी में जब पीजी करते हो तो इंडिया वापस नहीं आ सकते हो. आपको सेटल होना है जर्मनी में या ऑस्ट्रिया में या स्विट्जरलैंड में. इस तरह से पूरा कॉन्सेप्ट चलता है. ठीक है. आई होप नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. एग्जैक्टली गौरांग जैन. US university pay student 2 to 3 lakhs every month while doing PG. करेक्ट. तो आप खुद रिसर्च कर सकते हो. ठीक है गौरांग. अविरल, हर्ष, आपका आंसर क्लियर हुआ? गौरांग पूछ रहे हैं that's what I'm saying, Korea, Japan, these are not the countries where people go for PG. Do you want to learn everything in Japanese language and you will not be allowed to do anything in India? लुबांशी, जापानीज लैंग्वेज सीखने के लिए 1 साल एक्स्ट्रा लगेगा आपको. उसके बाद जापानीज लैंग्वेज में मेडिसिन सीखने के लिए 1 और साल.
तो ऐसे करियर बनाते हैं जहां से करियर बनता है, ठीक है। एब्सोल्युटली यस। दिशा सिंह, कैन वी सेटल इन इंडिया आफ्टर डूइंग पीजी फ्रॉम यूएस? एब्सोल्युटली यस। तो क्वेश्चन जो गौरांग ने पूछा है कि क्या हम सेटल हो सकते हैं, सॉरी सैलरी क्या होती है, 2 से 3 लाख होती है क्या? तो बहुत सिंपल है गौरांग, आप टाइप करो, मेरे कीबोर्ड का इश्यू है, आई विल टाइप इट आउट फॉर यू। यूएस, ओके, पीजी Y1 रेसिडेंसी, पीजी को यूएस में रेसिडेंसी बोलते हैं, रेसिडेंसी सैलरी। गौरांग, आपको किस स्पेशलाइजेशन में पीजी करना है? क्योंकि कोई भी स्पेशलाइजेशन हो आपको सैलरी तो मिलती है, बट आपको मैं फिर भी दिखा देता हूं। आपको ग्लास डोर तो ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, बट ऑफिशियल मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट दिखाता हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, गौराम पूछ रहे हैं क्या मिलता है। जैसे इंडिया में हम सर्च करें तो हमें फीस ढूंढना पड़ता है, यूएस में उल्टा रहता है, यूएस में हमको सैलरी ढूंढनी पड़ती है। तो फर्स्ट ईयर में आपको मिलेगी इतनी सैलरी, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करिए टू INR, कितना पैसा हो गया? 41 लाख रुपीस। मंथली कितना हो गया? 12 महीना से डिवाइड करिए, मोर देन 3 लाख हुआ कि नहीं? एग्जैक्टली करेक्ट। सो द पॉइंट इज, अच्छा गौरांग बोल रहे सर खाना पीना रहना उसका क्या? तो आप देख सकते हो गौरांग, वेकेशंस आपको प्रोवाइड किया जाता है, वेलनेस आपको प्रोवाइड किया जाता है, मेडिकल एजुकेशन फंड आपको अलग से इतने पैसे मिलते हैं, फूड आपको मिलता है, पार्किंग आपको मिलता है, पीपी किट वो आपको देते हैं। सो बहुत सारा एडिशनल बेनिफिट्स, इंश्योरेंस, ये सब आपको कॉलेज खुद प्रोवाइड करती है। आप एक भी रुपया स्पेंड नहीं करोगे। मिनिमम 3 to 4 लाख रुपीस पर मंथ। क्लियर है? Disha is asking, can people settle in India? Absolutely yes, and I will just give you an example. How many Indian students have got admission? अगर आपको देखना है, एग्जाम्पल मैं बता देता हूं कि इंडियन स्टूडेंट्स को मिलता है कि नहीं एडमिशन, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है ये तो लिखा हुआ है, बट इंडियन स्टूडेंट को थोड़ी एडमिशन मिलता होगा। एक कॉलेज का एग्जाम्पल आप बताता हूँ, ठीक है, आप चेक कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे कॉलेज यूएस में, and you will find out how many Indian students are studying. So you can see Amrita, Rangaya, Kasturba, you have CMC Vellore, you have Massachusetts, Saba, CMC. As you can see this, ये सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं, तो इन सबको 3-4 लाख की सैलरी मिल रही है। AFMC पुणे, पिम्स, स्टैनली चेन्नई, वर्धमान महावीर VMMC, गवर्नमेंट कॉलेज तिरुवनंतपुरम, गवर्नमेंट कॉलेज त्रिशूर, शांघाई, MCOMs, Chengalpattu, AFMC, Kempegowda, VMMC, Devarajas, Kilpauk, Tongji, China, MS Ramaya, AFMC पुणे। तो ये सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं। कैन यू सी दिस? गवर्नमेंट कॉलेज अकोला, so even in Maharashtra people are getting it, no problem. BJ Medical College Pune, Maulana Azad. So that is the point what I'm trying to tell you, that medicine is going to be a long career, मगर possibilities है, but at the same time hard work equally required है।